जिनके होने से खुद को मुकम्मल मानता हूँ, जिनके होने से खुद को मुकम्मल मानता हूँ। मेरे रब के बाद मैं बस मेरे माँ बाप को जानता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I, Muhammad Umar, standing in front of you as the host of today's program. We have gathered here to show you what your child is capable of doing. So, before we start our program, I would like to call our chief guests upon to this stage. Mr. Brother Nisar Ahmed and Farhad Dawood, please come up to the stage. And I would also like to call the ICC President, Rehan Yusuf. I would also like to call Brother Hani Afshan Nawaz to join us on the stage. I would also like to call Brother Rehan Riaz to also join us on the stage. Alhamdulillah. Now our guests have arrived and it's time for us to start our program. Now, let's get started with our program with a Qira by Muhammad Ruman and Bilal Manna. الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, competition in worldly English diversity. Until you visit the graveyard, no, you are going to know. Then no, you are going to know. No, if you only knew with knowledge of certainty, you will surely see the hellfire. Then you will surely see it with the eye of certainty. Then you will surely be asked that day about pleasures. Jazakallahu khair. That really helped us understand Allah's message. इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी. इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी. खिदमत करोगे तो जन्नत भी मिलेगी. Now it's time to welcome our guests and parents. I call upon Brother Muhammad Elan Nawaz to welcome the gathering. कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती? कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती? सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती। माँ बाप ऐसे होते हैं सब दोस्तों जो जिंदगी में फिर नहीं मिलते। कुछ रखा करो तो फिर देखो जन्नत कहाँ नहीं मिलती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पर आए हुए तमाम वालिदैन को और राया के साथियों सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पर आए हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमान उर्बी जमात इस्लाम हिंद के अमीर मुकामी निसार अहमद का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और हमारे जमात इस्लाम के हिंद के रुकन बरात एस दाऊद का भी तहे दिल से और हमारे एसआईओ के मेंबर ब्रदर रेहान रियाज का भी तहे दिल से सलाम करता हूँ। अब इसके बाद मैं ब्रदर रेहान यूसुफ जो आईसीसी और बी यूनिट के प्रेसिडेंट हैं और हानी अफशान जो आईसीसी और बी यूनिट के सब ऑर्गेनाइजर हैं उनका भी इस प्रोग्राम में इस्तेमाल करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर।
Jazakallahu khair, brother. It's time to listen to a naan by brother Muhammad Ridan Muhit. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahman ya Rahman, Sa'idni ya Rahman, Ishrah sadri Quran, Imlak qalbi Quran, Waski hayati Quran. Rahman ya Rahman, Sa'idni ya Rahman, Ishrah sadri Quran, Imlak qalbi Quran, Waski hayati Quran. Rahman Rahman, Sa'idni ya Rahman, Ishrah sadri Quran, Imlak qalbi Quran, Waski hayati Quran. Lillah lillah yahfu amalillah, walihifzi kitabillah, walihifzi kitabillah, min awwal bismillah, للختم والرضوان. رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسقي حياتي قرآن. رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسقي حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد يا جبريل، من ربي أرشد دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير، والضاء العين القرير، يحكم فجر لينير بتلاوة للأكوان. رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسقي حياتي قرآن. رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسقي حياتي قرآن. السلام عليكم. Jazakallahu khair, brother. It was absolute bliss to our ears. Now, I want you all to know the report of our organization, ICC. I call upon brother Rohan Riaz to tell us about the activities held at ICC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ICC रिपोर्ट 2022 और 2023 में जितने भी इवेंट्स है वो सब प्री प्लान है, तो उसके लिए हम एक 2-3 महीने पहले हम लोग प्लान करके रखते हैं। तो फर्स्ट ICC रिपोर्ट 2022 से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी ICC 2022 का समर कैंप रखा गया था मई 10, 11 और 12 को 9 AM to 1 PM हाशमी मस्जिद नायर के। इसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, बेसिक ऑफ इस्लाम, अंडरस्टैंडिंग कुरान, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट, टीम प्ले और आर्ट, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रीडिंग कल्चर और भी ज्यादा एक्टिविटीज पर रखा गया। और डे 1 में अचाक विद अल्लाह और माय इंटरेस्ट में जितने भी कैडेट्स थे, वहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट थे, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक उनके लिए एक ग्रुप दिया गया था। जितने भी लोगों को कंप्यूटर साइंस पसंद है उनके एक अलग ग्रुप रखा गया था, जितने भी ड्राइंग उनके लिए अलग। वैसे ही 1, 2, 3, 4, 5 ग्रुप रखे गए। और चैट विद अल्लाह पे मस्जिद नमाज का तरीका और नमाज कैसे पढ़ते हैं वो सब रखा गया है। और डे 2 में अंडरस्टैंडिंग कुरान, थिएट्रिक्स, पेपर बैग मेकिंग वर्कशॉप और बुक। थिएट्रिक्स में ब्रदर फरहान जो है वो उन्होंने थिएटर के ऊपर एक डिटेल्ड डिस्कशन और एक्टिविटी रखा हुआ था। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग कुरान, जहाँ पे कुरान के बारे में, कुरान के मोस्ट ऑफ द पारास जो है उसके मीनिंग्स और उसके मतलब के ऊपर डिस्कशन हुआ था।
उसके बाद आईसीसी समर कैंप 2022 का प्रोग्राम शेड्यूल रखा गया था 9 to 9:45 फर्स्ट सेशन, 9:45 to 10:30 सेकंड सेशन, 10:30 to 11:15 थर्ड सेशन और 11:30 to 12:45 लास्ट सेशन और फिर डिस्कशन। उसके बाद इंटरैक्शन विद जोनल प्रेसिडेंट ब्रदर शेरशाद शकीबुल्ला और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ऑन बिजनेस आइडिया। यहाँ पे जोनल प्रेसिडेंट के साथ एक बहुत ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग सेशन रखा गया था। उसके बाद उसके अगले टॉपिक पे गए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ऑन बिजनेस आइडियाज। हर एक आईसीसी कैडर्स में 5 मेंबर्स का ग्रुप करते हैं और उस 5 मेंबर्स के ग्रुप में एक मेंबर को एक ऐसा इनोवेटिव स्टार्टअप लेकर आना चाहिए था जो कि वो फ्यूचर में भी हेल्प हो और अभी प्रेजेंट सिचुएशन में भी हेल्प। उसके बाद प्रोडक्ट मार्केटिंग कंपटीशन, प्लानिंग ऑफ 3 मंथ्स एक्टिविटी फ्रॉम जून टू अगस्त। प्रोडक्ट मार्केटिंग कंपटीशन में एक आपके सामने 5 प्रोडक्ट रखे गए थे जिसमें फुटबॉल हो सकता है, वो डस्टर हो सकता है। उसको आपको एक सेल करना है अपने तरीके से। उसको सेल करने के किसी को आसान बात नहीं। वो उस प्रोडक्ट में आपको दूसरों लोगों की दिलचस्पी जो है वो इंटरेस्ट आपको उस प्रोडक्ट पे लेकर आना चाहिए। उसके बाद आईसीसी यूनिट का 3 मंथ्स प्लान सेट किया गया था जैसे मैंने कहा था प्री प्लान। उसके बाद करियर गाइडेंस सेशन बाय बिलाल आसादी। करियर गाइडेंस सेशन रखा गया था। बिलाल आसादी यहाँ पे रिसोर्स पर्सन आके उन्होंने एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वे से करियर के बारे में आगे जितने भी होने वाले पॉसिबिलिटीज है उसको बताया। उसके बाद रिक्रिएशनल टाइम, स्विमिंग एंड एजर कार्ड पूल। स्विमिंग कंपटीशन एक स्विमिंग एक्टिविटी रखा गया था उडुपी सर्कल। वो एक घंटे उद्यावर और उडुपी यूनिट के जितने भी कैडर्स थे वो लोग इसमें शरीक हुए। उसके बाद शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन रखा गया था जिसमें आपको एक व्हाइट बोर्ड में 4 इमेजेस रखे जाते थे जिसमें उस 4 इमेजेस में आपके दिमाग में जो भी स्टोरी आ सकते हैं आपको वो स्टोरी प्रेजेंट करना है। उसके बाद एक क्लास में जाते वक्त टेका में भी रखा गया था कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा। उस सेंटेंस में सिर्फ एक बेस दिया जाएगा आपको स्टोरी का और वो बेस को लेकर आपको एक पूरी अपने खुद की इमेजिनरी स्टोरी बनाना है। Election of ICC Udupi Unit 2022. Brother Lukman Ahmad was anonymously elected as the president of ICC Udupi Unit, and Brother Hani Afshan Nawaz Ahmad was appointed as the sub-organizer of ICC Udupi Unit 2022. उसके बाद चैप्टर्स ऑफ कुरान कंडक्टेड बाय ब्रदर यासिन बन्ना जो कि हमारा ऑर्गेनाइजर है। इस चैप्टर ऑफ द कुरान को एक बहुत ही इनोवेटिव मेथड से बच्चों के सामने रखा गया था बाय एक्टिविटीज। उसके बाद 10 जुलाई 2022 को ईद था जिसके आईसीसी क्लासेस में हो। उसके बाद क्विज टाइम था कंडक्टेड बाय ब्रदर आबिद मोहम्मद। यहाँ पे क्विज कंपटीशन रखा गया था जो भी विनर्स है उन्हें आज प्राइज मिलने वाला। नेक्स्ट उसके बाद 24 जुलाई 2 एक्टिविटी रखे गए थे सॉल्विंग अ रूबिक्स क्यूब एंड इंडिविजुअल बुक रिव्यू ऑन कुरान स्टोरीज फॉर योर माइंड। सॉल्विंग अ रूबिक्स क्यूब ब्रदर आसिफ उन्होंने उस एक्टिविटी को लिया था। फिर एक्टिविटी 2 में बच्चों को बुक्स दिए गए थे जो कि बुक्स को आप उन्होंने पढ़कर आगे आकर बुक्स की जो भी समरी है उसको डिटेल में नहीं बल्कि आसान से हमें समझाना। 31 जुलाई 2022 एक्टिविटी 2। इस दिन कई सारे एक्टिविटी रखे गए थे जिसमें जितने भी लोग विन हुए हैं उन्हें आज प्राइज मिलेगा। ऑर्गेनाइजर्स वर्कशॉप 31 जुलाई संडे सेलेक्ट जो जितने भी ऑर्गेनाइजर्स थे बी यूनिट उन सबको एक अलग से वर्कशॉप रखा गया था सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स के लिए। उसके बाद लाइब्रेरी डे था आधार कार्ड लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी गए थे कैडर्स वहाँ पे जाकर बुक्स पढ़े। उसके बाद वो एक्टिविटी का मेन पर्पस ये था कि बच्चों को लाइब्रेरी में इंटरेस्ट लेकर आना और एजुकेशन जो है उन्हें कैसे फनी और इनोवेटिव वे से सीख सकते हैं वो मेन मोटिव था। उसके बाद ड्राइंग कॉम्पिटिशन रखा गया था और उसके साथ ही साथ अनसंग हीरोज ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंडक्टेड बाय ब्रदर शेख आया। जितने भी मुसलमान फ्रीडम फाइटर्स थे इंडिपेंडेंस जितने भी इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए अपनी जान को कुर्बान किया था उन्हें अभी तक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो नहीं पहचानते कि वो कौन है। कुछ लोगों को जानते थे गांधी जी हो गए जवाहरलाल नेहरू और उसी के साथ कई सारे ऐसे भी थे मुसलमान थे जिन्होंने अपने जान को कुर्बान किया था और उसी के बारे में ब्रदर शेख आया ने डिटेल में समझा। उसके बाद एक्टिविटी गोल 100 इंडिविजुअल एफर्ट सैक्रिफाइस एंड टीम बिल्डिंग।
इसमें पर पर्सन 1 to 100 नंबर लिखेगा और एक होगा कि जो नंबर बोलेगा, जो भी अभी उन्हें 56, अभी जो भी मेंबर 56 नंबर लिख रहा होगा तो उसका चांस कर उसको वापस फिर 0 से लिखना स्टार्ट करना। फिर उसके बाद प्रैक्टिस फॉर द क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ था आईसीसी उडुपी सर्कल का, उद्यावर क्रिकेट और उडुपी उसके लिए प्रैक्टिस चलता है। उसके बाद 28 अगस्त को क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था उद्यावर में, जिसमें आईसीसी उडुपी यूनिट फर्स्ट विनर्स और रनर अप दोनों भी उडुपी यूनिट रहे। उसके बाद 11th September, a brainstorming session on financial literacy for young minds. Cadres are given the activities on designing an Islamic idea based on business needs. उसके बाद 13th September 2022, planning of the next 3 months activities up to December 2022. 6 cadres showed their interest to join the singing club. Singing club का एक स्टूडियो भी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें 6 लोगों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। मोहम्मद हौदान, मोहम्मद शेहजान, नवाज, मोहम्मद लुकमान, मोहम्मद रुहान रियाज, हानी अफशान नवाज। और 25 सितंबर 2022 को पैनल डिस्कशन रखा गया था इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन और बी अ टीचर कहकर एक एक्टिविटी भी रखा गया था, जहाँ पे हर एक कैडर्स को एक ऐसा सब्जेक्ट सिखाना है जो जिसको वो एकेडमिक एक्सेलेंस, जिसमें वो एकेडमिकली एक्सेलेंट हो। 2nd October 2022, SIU National Caravan visited Udupi district on this day. Regular ICCs were all off. 9th October 2022, swimming day. As a part of recreational activity, cadets were taken to Ajarkar swimming pool. 16th October को कैडर्स को एक हफ्ते का टास्क दिया गया था, जितने भी वो नमाज पढ़ रहे हैं, फर्ज नमाज और सुन्नत नमाज को उन्हें टिक कर लेकर आना था अगले ऐसे क्लास। 23rd October 2022 को an activity on communication skills was conducted. Following the cadres presented a small program, MC Ruhan Riaz, Surah with meaning Muhammad Umar, Naat Ridan Mohit, Hadith Ilan Nawaz, stand-up comedy Muhammad Rehan Yusuf, paper craft Umar, Dua Hani Afshan Nawaz. 24th October को cadres were taken on an explorational drive to the following places, but unfortunately due to Diwali government holidays. तो 5 प्लेसेस विजिट करने के प्लान में थे: कॉइन म्यूजियम, एनाटॉमी म्यूजियम, स्मृति भवन, कृष्णा मठा एंड ग्रीनवॉल। और our next class 30th October 2022, video recording of the cadets performing various activities: Kirat Muhammad Umar, Naat Ridan Mohit, Hadith Ilan Nawaz, Tarana Asif Ahmad Sheikh और स्टोरी by शेखा। 5th October को a life size snake and ladders गेम रखा गया था, जिसमें हर एक अच्छे काम आपको ऊपर लेके जाती है और हर एक बुरी काम आपको शाम की तरह काम कर नीचे लेके आती है। 20th November, cadets were divided into groups consisting of 3 members. They had to elaborate any existing problems and find a solution from their perspective. Individual cadre meet is being held since last week, where we solitary conversation with the cadets in order to get to know their personality traits, behavior and interests. 27th November को brother Yasin Manna was not present on this day. Sub-organizer brother Hani Afshan Nawaz conducted a quiz competition to the cadets. 4th December 2022, a guest topic by brother Ayan Malbe on the topic childhood, its foundation of your life and that days ahead. Alhamdulillah, it was a good interactive session. 11th December 2022, writing calligraphy of Islamic words like Bismillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. 25th December 2022, brother Abid Muhammad engaged in an interactive session with the ICC cadets. 21st January 2023, a conversation on importance of growth, why a new year is demarcation of one last year, an interactive session filled with ideas, practical demonstrations, stories, etc. Also played the game Dog and the Bone. All the ICC kids were gifted a chocolate bar. 8th January 2023, students had to design their annual self-development plan. Different headers for the relationships with Allah, relationship with Quran, Dawah, education, society, family, etc. were elaborated. 15th January 2023, election process was duly carried out. These are the names have been nominated for the part of the President of ICC 2023. Brother Rehan Yusuf, Brother Ilan Nawaz and Brother Ruhan Riaz. 22nd January 2023, students were taken to a book fair which was organized at Mother of Sorrows Church, Udupi. 29th January 2023, Tazkiyah self-introspection.
A talk was held on this topic by Brother Yasin Khan. 4th February 2023, an interactive session with Maulana Yusuf Sahib and Janab Akbar Ali. It was a healthy and fruitful discussion where the speaker left the kids with some key points about good manners and productive childhood. Janab Akbar Ali Sahib, in Islamic alphabet, was sung by sparkling memories. 12th February 2023, Brother Yasin Manna was at Raichur on behalf of State Leaders Meet. Brother Asil Sheikh conducted a music event for the cadres. 19th February 2023, Brother Ruhan Riaz delivered a lengthy and enlightening speech on confidence and public speaking skills. An interactive activity was conducted which was practically about the Prophet Muhammad's hadith. 5th March 2023, ICC organizers meet was held at Bangalore since all the organizers had to participate. ICC classes were called off. 19th March 2023, finalized the script of the ICC last 10 days series. Participated in the Ramzan every second counts. Public program held at Hotel Kidiur rooftop Udupi. Speakers Janab S. Aminul Hassan and Janab Muhammad Guni. 25th March 2023, first edition of the Students' Canvas was published. 2 paintings of Brother Rayan Yusuf and Brother Umar were published on it. 2nd April 2023, fun activity on physical well-being conducted by Hani Afshar Nawaz. All the cadets were given a Ramzan checklist. They were encouraged to follow the routine accordingly. 5th April 2023, ICC Iftar get together. One dish party was organized. Every cadet had to bring one delicious snack from their home. Sharing is caring. Alhamdulillah. 9th April 2023, a talk on the theme What is Zakah? Who needs to pay and 8 letters of dispersing Zakah. Poster making competition on the theme of Zakah was also conducted. 12th April to 22nd April 2023, last 10 days series of ICC would be reviewed. Short video reminder were shot and circulated on social media platform, the Ramzan Diaries. 12th April 2023, cadets also participated in the Odd Nights Quran Study Circle and actively engaged by sharing their thoughts and ideas. 22nd April 2023, Eid al-Fitr, so therefore it was an holiday. 30th April 2023, due to some unavoidable reasons, we conducted the ICC classes. 7th May 2023, treasure hunt event was organized by Brother Hani Afshar Nawaz. All the students actively participated in the event. Prizes were distributed at the particular day, chocolates and mangoes. 14th May 2023, planning for the district level sports tournament, teams were also finalized. Mulaqat event was organized at FPPS Flower of Paradise. Malpe senior cadets from the ICC units were taken to this event. The event was delayed for almost 2 to 3 hours, but our ICC cadets played volleyball and kept themselves engaged. 20th May 2023, Saturday, a small meeting was called to finalize the team and confirm the events for the district level ICC sports meet. ICC unit jerseys were distributed to all the cadets. The cost for each jersey was ₹50. 21st May 2023, district level ICC sports meet held at Udupi. SIOP district organized a district level ICC sports meet which was witnessed by participation of around 250 individuals from various parts of the district. This event featured cricket, football, volleyball, dodgeball, tug-of-war and model making. The participation displayed an exceptional sportsmanship and showed their skills and enthusiasm throughout the event. 20th May 2023, planning and finalization for ICC school at Shimoga, which was held on 3rd and 4th June. SIO schools were held at Shimoga. Here's the list of the cadets who participated from the SIO or ICC period. Yunus Asad, Nawaz, Asim Ahmad Sheikh, Muhammad Adnan, Muhammad Abad Kalakar, Lukman Ahmad, Muhammad Rohan Riyal. ICC classes were called. 11th June 2023, introduction of the 4 Khalifas of Islam. Kids were made to memorize their names and encourage the learning about them. 8th June 2023, guest lecture on the theme Life and Teaching of Ibrahim alayhi salam and Ismail alayhi salam. Speaker Brother Rayan Riyaz. 25th June 2023, Brother Rayan Yusuf, Hani Afshar Nawaz and Brother Yusuf Sadi engaged ICC classes. 2nd July 2023, Brother Arafat Akram gifted chocolates and dates to all the ICC cadets. Alhamdulillah, indoor games were also set up. 9th July 2023, regular ICC classes. Few of our cadets met with Maulana Salim Amrisa at the JIS family. Please get together. 16th July 2023, sketch pen drawing activity.
23rd July 2023, due to unexpected heavy rains, ICC classes were called off. Eventually, brother Yasin Manna was admitted in KMC hospital due to dengue. Alhamdulillah, he is fine and fit right now. 29 July 2023, applicants member camp was held at Davangere. 7 carers from ICC Udupi unit participated in AMC. Alhamdulillah, received a positive and vibrant feedback from the zonal teams. 3 AMC online series were also conducted for the 1 year before the AMC program at Davangere. We break down from various informative and important topics. Alhamdulillah, there are members who are going, there are ICC members who are inshallah going to be SI members in the future. Brother Zuhan for letting our parents know and even give guests about the report of ICC. औलाद के नखरे तो सिर्फ माँ बाप उठाते हैं, औलाद के नखरे तो सिर्फ माँ बाप उठाते हैं, दुनिया वाले तो सिर्फ उंगलियां उठाते हैं. Now let's lend us our ears to our guest, Sister Farhat Dawood, to talk about childhood is a gift. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي रब यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर. यहाँ पर मौजूद तमाम पेरेंट्स और मेरे प्यारे बच्चे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. तो सबसे पहले मैं आईसीसी के इंचार्ज और उसके बच्चों को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझसे कहा गया था कि एक आईसीसी और बच्चे और उनके पेरेंट्स के साथ एक छोटा सा गेट टुगेदर होगा, उसमें आपको एक जस्ट थोड़ा बात करना है पेरेंट्स के हैसियत से. तो मैं उसको हाँ एग्री की, बच्चे और पेरेंट्स हैं, लेकिन मेरी बहन को गुमान में नहीं था कि इतना अच्छा प्रोग्राम सेटअप करेंगे वो. अगर मेरी बहन को गुमान में होता तो शायद मैं यहाँ पर ये टॉक लेने की हिम्मत भी नहीं कर पाती. तो मुझे टॉपिक दिया गया है, मुझे बात करना है कि चाइल्डहुड इज अ गिफ्ट, यानी बचपन एक तोहफा है. जब ये मुझे टॉपिक दिया गया तो मैंने एक्चुअली अक्सर मैं है ना क्लास लेती हूँ, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ही मेरा क्लास रहता है. तो ये मुझे इस बारे में स्पीच दिया गया तो मेरे जहन में कोई आयत, यानी बचपन एक गिफ्ट है, आयत नहीं आई, कोई हदीस नहीं गुजरी, तो मेरा उसका क्या है, उसका स्टडी चल रहा था. तो फिर मेरे नजर में कुछ आयतें आए, वो आयत मैं आपके सामने बताती हूँ. या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहु फ़इन तअफ़ू व तस्फ़हू व तग़फ़िरू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम. तो ये आयत मेरे सामने गुजरी. तो अगर आप इस आयत का तर्जुमा देखेंगे तो ये जो टॉपिक दिया है उसके फुल अगेंस्ट है. यानी आयत में क्या बताया गया है कि बेशक ये क्या है, ऐ लोगों ईमान लाए हो, बेशक तुम्हारी बीवियां और तुम्हारी औलाद क्या है, अदुव्वन लकुम, यानी तुम्हारी दुश्मन है बताया गया है. लेकिन टॉपिक क्या था, गिफ्ट है बोल के बताया गया. लेकिन इसमें बताया गया है क्या है, तुम्हारी दुश्मन है बोल के. तो कुरान में और एक जगह बताया हमारा दुश्मन, किसको बताया है, कोई बता सकते, किसको दुश्मन बताया गया है? हाँ, शैतान. ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु अदुव्वुन लकुम, यानी एक शैतान वो है. क्या हमारे बच्चे हमारे शैतान है? क्वेश्चन हमारे दिल में आएगा. लेकिन बात की आयतों पर गौर करेंगे तो उसका सही मफ़हूम लिखेगा कि अल्लाह ताला क्या बोल रहा है. शैतान के बारे में जब बताया गया तो बोल रहा है कि ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, कि तुम शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, यानी उसकी फुट स्टेप को भी फॉलो ना करो. लेकिन जब यहाँ पर ये आयत बताया गया है सूरह तगाबुन की आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला बताता है कि ये क्या है, ये बीवियां और ये बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं. उसके साथ साथ बताता है कि फहज़रूहुम, यानी उनसे चौकन्ना रहो. यानी ये दुश्मन ऐसे नहीं कि इनसे जंग करो, बताया गया इनसे चौकन्ना रहो, इनसे आगाह रहो. बाद में आखिर में क्या बताता है अल्लाह ताला, इन ताफू. तो 3 स्टेप बताया है कि इन बच्चों के साथ, यानी ये दुश्मन को बताया ना अल्लाह ताला ने, उसके बाद बताया कि इन बच्चों के साथ हमें किस तरह बिहेव करना है. तो 3 बातें बताए, इन ताफू व तस्फ़हू और एक बताया व तग़फ़िरू. तो ये देखो सेम माना है, देखने में लगता है कि माफ करो, लेकिन इस आयत के इसमें गौर करेंगे तो इसे पता चलता है कि
ताफू मतलब है कि कुछ चीजों को ढील देना पड़ता है, नहीं? अब बच्चों का अक्सर हम बोलते हैं ना, ये नहीं करेगा तो हम क्या है भी दोपहर का खाना देते नहीं, ये नहीं करेगा तो मोबाइल देते नहीं, इस तरह बोलते हैं। लेकिन क्या है, दे देते हैं हम। बच्चा काम नहीं करता, दे देते हैं। तो अल्लाह ताला बोल रहा है कि इस दुश्मन के साथ हमें क्या करना है, थोड़ा सा डील देना है। नेक्स्ट बताता है वतस्फहु मतलब कि देखा देखी करना, जैसे इग्नोर करना। बोलते हैं ना बच्चों को हम घर में, देखो सोफे के ऊपर पैर नहीं रखना, बिस्तर खराब गंदा नहीं करना बोलते, लेकिन अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं। लेकिन क्या है, हर वक्त हम क्या है एक पुलिस के जैसे हाथ में लेकर नहीं बैठ सकते, करते हैं अक्सर। लेकिन क्या है, कुछ चीजें इग्नोर कर देते हैं। कभी कभी भाई बहन लड़ते हैं तो उसको भी इग्नोर कर देते हैं। तो अल्लाह ताला बोल रहा है कि इस दुश्मन के साथ क्या करना है, पहले थोड़ा ढील देना है, थोड़ा उन्हें क्या है इग्नोर करना है। उसके बाद बताता है तगफिरु मतलब कि उन्हें माफ कर देना। माफ यानी तगफिरु का मतलब आता है कि किसी चीज को ढांप लेना। जैसा कि मुर्गी अपने बच्चों को कैसे अपने परों से ढांप लेती है, तो क्या है बच्चों से गलतियां होती है तो उनसे क्या है घर से बाहर डालना, उनको ऐसे ऐसे सख्त पनिशमेंट देना नहीं। अल्लाह ताला बोल रहा है कि तगफिरु, उन्हें क्या है माफ कर दो, उन्हें ढांप लो, यानी अपने प्यार से उन्हें क्या है उनकी गलतियों को सुधारो, बल्कि अल्लाह ताला हमें बता रहा है। तो मेरा टॉपिक था क्या, चाइल्डहुड इज ए गिफ्ट। लेकिन अल्लाह ताला है ना बच्चों के लिए 3 वहां पर अलग अलग बताए। यहाँ पर क्या बताया था, अदुव्वुल लकुम कि वो तुम्हारा दुश्मन है। और एक जगह क्या बताया है, अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। ये सूरह कहफ में अल्लाह ताला बताया कि ये क्या है, तुम्हारे जीनत है, यानी दिल लुभाने के क्या है ये सामान, यानी बच्चों के लिए अल्लाह बताया। इसको वल बनीना बोल के किया है अल्लाह ताला ने, तुम्हारे माल और तुम्हारे औलाद क्या है, तुम्हारी जीनत है। और सूरह तगाबुन के नेक्स्ट 15 आयत में अल्लाह ताला क्या बताता है कि बेशक ये पाप है। हाँ, उसमें क्या बताया, इन्नमा अम्वालुकुम वल औलादुकुम फितना। वहां पर बताया कि फितना, तो 3 चीजें ने, अदो दुश्मन, और बताया कि फितना, और बताया कि जीनत। तो अब मेरा यहाँ पर मैं टॉपिक में आती हूँ कि ये अल्लाह ताला ने कहीं कुरान में ये गिफ्ट है बताया नहीं अल्लाह ताला ने, बल्कि बताया ये है कि ये औलाद क्या है, तुम्हारे लिए कभी दुश्मन भी हो सकते हैं, तुम्हारे लिए दिल लुभाने की जरिया भी हो सकते हैं, और तुम्हारे लिए क्या है ये फितना भी हो सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने साथ साथ में बताया है कि इन बच्चों को अगर सही तरह से तरबियत करते हैं, क्योंकि देखो बच्चे क्या है, 3 मरहला होता है इंसान की जिंदगी का, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तो क्या है, बचपन वो है जैसे कि हमारे लिए गिफ्ट, यानी जो बोलते हैं हम बच्चों को है ना वो बच्चे करते हैं, यानी जैसा उनको शेप दिया जाता है उस शेप में क्या है बच्चे पलते हैं। तो ये बचपन का जिंदगी है ना, बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं, प्यार करके उनको डरा धमका के क्या हमारे काम उनसे बनवा सकते हैं। तो ये पीरियड में चाहिए कि क्या है, पेरेंट्स को उन्हें सही तौर से तरबियत करना चाहिए, तब जाकर ये क्या है बच्चे हमारे लिए गिफ्ट बनेंगे, और उनका बचपन क्या है रियल में क्या है उनके लिए तोहफा होगा अल्लाह ताला की तरफ से। तो अब अल्लाह ताला हमें आगे बताता है कि बच्चों को सही गाइड कैसे करना है। अगर इस तरह से उनकी तरबियत की जाएगी तो वाकई तुम्हारे क्या है ये बच्चे, जिसको अल्लाह ताला ने बताया कि तुम्हारे दुश्मन, ये बच्चे क्या है जन्नत को जाने की चाबी जरिया बन सकती है। जहाँ पर बताया कि ये फितना है, ये बच्चे क्या है आजमाइश है, तो यही बच्चे क्या है हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाब होने के जरिया बन सकते हैं। और यही बच्चे जिसको अल्लाह ताला ने जीनत यानी टाइम पास का जरिया यानी दिल लुभाने का जरिया बताया, वहीं पर ये बच्चे क्या है हमारे दिल के सुकून का जरिया बन सकते हैं। तो मैं अभी आखिर में एक बच्चों की तरबियत किस तरह किया जाए कुरान की आयतों से आपको बताऊंगी, और मेरे पास सिर्फ 50 मिनट्स का टाइम है, तो हम देखेंगे कि बच्चों के किस तरह हम तरबियत करें। सूरह लुकमान में अल्लाह ताला फरमाता है, लुकमान अपने बच्चे को नसीहत करता है, वही नसीहत वही ट्रेनिंग हमें अपने बच्चों को करनी चाहिए, तब जाकर ये बच्चे क्या है हमारे लिए सुकून खल्ब बन सकते हैं। तो उसमें देखो आयत नंबर 13 से शुरू होता है लुकमान अलैहिस्सलाम का अपने बच्चों के लिए नसीहत। उसमें फर्स्ट क्या बताता है कि ला तुश्रिक बिल्लाह, तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, बल्कि बता रहे ये क्यों, माँ बाप से, माँ बाप उसके बाद स्टेप आता है माँ बाप के बारे में। पहले आता है कि अल्लाह से शिरक ना करो, क्योंकि अल्लाह ही तुम्हारा हाकिम है, तुम्हारा रब है, तुम्हें पालने वाला है। तो यही रब तुम्हें क्या करता है, अगर हम बच्चों को बताएंगे कि क्या है अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, तो यही रब क्या बोलता है नेक्स्ट में कि माँ बाप के हक को तुम पहचानो।
फर्स्ट में हमें अपने बच्चों को क्या है, रब की पहचान कराना है, तब जाकर ये बच्चे क्या है, माँ बाप के कद्र कीमत को जानेंगे। तो लुकमान अपने बच्चे को फर्स्ट नसीहत क्या करते हैं, अल्लाह के साथ शरीक ना करो किसी को। नेक्स्ट में आता है कि माँ बाप के साथ क्या, माँ बाप के हक को तुम पहचानो, उनके साथ एहसान का बर्ताव करो। अगर ये माँ बाप अल्लाह के खिलाफ कोई काम तुमसे कहेंगे तो उससे ना करो, लेकिन बाद में क्या है, उनसे भरपूर उनका क्या है, उनके साथ एहसान के साथ सलूक करो, करके अल्लाह ताला फरमाता है। उसके बाद देखो जो तरबियत में आती है, आयत नंबर 70 में क्या बताता है, ऐ मेरे बेटे अक़ीमिस सलाता, नमाज कायम करो, और क्या है, भलाई का हुक्म दो, और क्या है, बुराई से रोको, और जो भी मुसीबत तुम्हें आए उस पर क्या है, सब्र करो, इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। तो यहाँ पर क्या है, मेन जो तरबियत करनी चाहिए उसके बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं। अल्लाह के साथ शिर्क ना करो, माँ बाप का हक पहचानो। उसके बाद आता है कि नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो नहीं बताया, नमाज कायम करो। नमाज कायम कहाँ होती है, मस्जिदों में, तो मस्जिद का भी हक हमें पहचानना है। तो इस तरह नमाज कायम करो, उसमें भी जमात का भी अल्लाह ताला ने हुक्म हमें दिया है। उसके बाद पता है कि भलाई का क्या है, हुक्म देना है, और बुराई से रोकने वाला बनना है, और जो भी मुसीबत आया है उस पर सब्र करने वाला बनना है। उसके बाद अल्लाह ताला ने बताया इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। तो ये काम जो है अल्लाह ताला ने बताया, ये ऐसे वैसा काम नहीं है, ये बड़ी अहमियत रखने वाले काम बताए। तो मेरा आज यहाँ पर बताने का मकसद है कि जो बच्चे ये आईसीएसई में जो काम कर रहे हैं, नहीं ऐसा वैसा काम नहीं, हमारा रब क्या बोल रहा है कि ये इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। तो भी आपने आज रिपोर्ट यहाँ पर देखिए, जो हमारे बच्चे ने बताया 1 साल का, जो 2 साल का रिपोर्ट था, तो देखिए उसमें कौन सा काम आपको लगता है कि जो बच्चों को बेहयाई की तरफ ले जाने वाली है, जो अय्याशी की तरफ ले जाने वाली है, वो सा काम भी हमें नहीं लगता। तो हमें क्या है, अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हमारे बच्चों को मिला, जहाँ पर क्या है, ये बच्चे, अब मैं देखती हूँ कि SIO का जो नेक्स्ट कैंपेन क्या था उनका, एक एजुकेशन के बारे में कैंपेन था, अब उनका नया कैंपेन आ रहा है क्या, एनलाइटनिंग टुमारो, अरबी न नाड़ेगागी बोल के कैंपेन है, और ड्रग्स के खिलाफ उनका एक बहुत बड़ा मुहिम चला। तो ये देखो हमारे बच्चे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहाँ पर क्या है, लड़कियों को डेट के लिए बुलाया नहीं जाता, रात रात नाइट पे पार्टियां नहीं होती, बल्कि हमारे बच्चे वीकेंड्स इस तरह गुजारते हैं कि क्या है, एक बेटर सोसाइटी बनाने के लिए हमारे बच्चे निकले। तो मैं इस तहदिल से मुबारकबाद देती हूँ। और एक मैं वाक़या बताती हूँ कि हमारे एक पड़ोसी में एक बच्चा था, मैं जब नई नई शादी करके आई थी, तो वो एक प्राइमरी में जाने वाला बच्चा था, वो बड़ा जवान हो चुका है। तो रिसेंटली मेरे घर में आया, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करता था। तो लड़का मेरे पास आया और उससे मैं बोली अभी बहुत दिन से यहाँ पर दिखाई नहीं देते हो, तो वो अपना बता रहा था, रूटीन बता रहा था, यानी मासूम बच्चा था जब छोटा था, लेकिन अब क्या रूटीन बता रहा था कि भाभी बुलाता है, तो भाभी मैं है ना अच्छा कमाता हूँ, तो वीकेंड में क्या है नाइट क्लब में जाता हूँ, वहाँ पर क्या है वीक में एक बार मैं शराब पीता हूँ, और क्या है मेरी गर्लफ्रेंड है, वो सब उसने बताया। मतलब कि क्या है, उसका वीकेंड किस तरह गुजरता है नाइट क्लब में। और वो ये भी बता रहा था कि वहाँ पर क्या मुसलमान लड़के और लड़कियां भी आती हैं, और वो क्या है ड्रग्स भी लेते हैं। तो मैं उनको बताया कि ये इस्लाम में नहीं है ना, तो लोग क्यों आते हो। तो वो मुझे उसका पूरा ये करके मैं उसको बताई कि शराब किस तरह क्या है बुराई की जड़ है, और क्या है बाकी सब बुराइयों को क्या है वो अपने अंदर ले लेती, किस तरह हावी कर लेती, मैंने हदीस को बताया। लेकिन वहां पर मुझे 2 दिन वही एहसास हो रहा था कि अल्लाह ताला ने बचाया कि हमारे बच्चों का वीकेंड कैसे चलता है और वो बच्चे का वीकेंड कैसे चलता है। इसलिए उसने उस वजह से क्या है उसकी फैमिली में जो प्रॉब्लम हो रहा है वो भी बताया उसने। और उसकी गर्लफ्रेंड है 8 साल से है, और वो बता रहे हैं मुझे शादी करने के लिए डर लगता है कि शादी के बाद का जो सिचुएशन है घर में उसके अम्मी और अब्बा का, वो देखकर वो भी घबरा गया। तो मैं कहती हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म जो बता रहा है, देखो यहाँ पर आपने सुबह के अभी तक सेशन में क्या सुनाई दिया आपको, रब के बारे में, तुम्हारे रब को इनके बारे में, कुरान के बारे में वही क्लासेस बताया गया है। यानी अगर हम अपने रब को पहचानेंगे तो रब की जो इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट है ना, वो क्या है हमें भी कामयाब कर देगी और हमारे बच्चों के फ्यूचर को भी क्या है उजाला कर देगी, और यही क्या है हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब होने का जरिया बताएगी। तो इतना कहकर
कहकर मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। अल्लाह ताला अगर मेरे कहने में कुछ गलतियाँ हो तो इससे दरगुजर फरमाए, मुझे माफ़ फरमाए, हमारी कोशिशों का अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Jazakallah khair, sister, for enlightening us about the gift given by the God, Almighty Allah. A song always energizes everyone, right? Now we have brother Muhammad Ayman and his talented group to present a lovely song. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Imam, मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरा आंचल की ठंडी हवा चाहिए, लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तू, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे ममता के साए फूलों फलों थाम कर तेरी उंगली में बढ़ता चलूं, आसरा बस तेरे प्यार का चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे खुदमत से दुनिया में अज़मत मिली, तेरे कदमों के नीचे जन्नत मेरी, प्यारी माँ मुझको सारा तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। Yes. Jazakallah khair, brother Muhammad Ayman and your talented group. Energized? Ready? Okay. मिलने को तो हजारों लोग मिलते हैं, मिलने को तो हजारों लोग मिलते हैं, मगर हजार गलती माफ करने वाले माँ बाप मिलते नहीं हैं। Now it's time to felicitate the toppers of SSLC and PUC. How would you feel if you were in this place? We have brother Muhammad Ayman to call out the names of those toppers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. During the last academic year, few of our cadets scored excellent marks in their SSLC examination. Today, on behalf of SIO unit, we would like to felicitate them. Azim Ahmad Sheikh, Muhammad Adnan, Ayan Abdul Razak, Ahmad Razak, Muhammad Ifah, I request the chief guest to hand over the prize. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसिफ ये सारे जो हैं छोटे छोटे बच्चे थे कुछ साल पहले,
they have passed out their 10th standard and अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स लेकर हम यहाँ पे किसी का भी मार्क्स इसीलिए नहीं बता रहे कि बीइंग इन आईसीसी हम मार्क्स को प्रमोट नहीं करते, वो चाहे जितना भी मार्क्स लिया हो, वो 50% लिया हो या 99% लिया हो, अचीवमेंट ये है कि उन लोगों ने उस हद में उनकी बेस्ट देकर उनके बेस्ट रिजल्ट्स लिए हैं और ये सारे हमारे बच्चे हैं, इंशाल्लाह आगे जाकर इस मुस्तकबिल के सितारे बनने वाले हैं। तो सहयोग की तरफ से एक छोटा सा पार्टिसिपेशन है। Yes, Jazakallah khair, Brother Muhammad Ayman, and congratulations to the toppers of SSLC and POC. I hope we will all, like my age, below my age, would be a part of your place, inshallah. माँ बाप का दिल जीत लोगे तो कामयाब हो जाओगे, माँ बाप का दिल जीत लोगे तो कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। Now, you might know what SIO is, right? Yes, I know, I can feel the energy. Okay, our chief guest, Brother Rehan Riaz, is here with us to explain what SIO is. अस्सलाम वालेकुम। आज आप देख सकते हैं कि बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट उनके दिलों में हो, उनके जबान में हो या मस्जिद की दीवारों में हो, चारों तरफ एसआईओ का नाम गूंज रहा है माशाल्लाह। लेकिन क्या हम सच में समझते हैं कि एसआईओ क्या है? एक जनरल व्यू ये है कि एसआईओ एक तंजीम है, उस तंजीम का एक मेन गोल क्या है? मैं बच्चों से सुन सकता हूँ क्या? व्हाट इज द मेन गोल ऑफ एसआईओ? बच्चे बिजी है थोड़ा। एसआईओ का जो मेन गोल है, एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है कि पेरेंट्स स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना सोसाइटी के रिकंस्ट्रक्शन के लिए कुरान और हदीस के रास्ते। ये एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है सबका। लेकिन मेरे लिए एसआईओ क्या है, हमारे लिए एसआईओ क्या है? मैं समझता हूँ कि एसआईओ एक अलग से कोई तंजीम नहीं है, हम अवाम ही एसआईओ है, हम लोग ही एसआईओ है। एक एसआईओ एक इमोशन है कैडेट्स के लिए। आई स्टिल रिमेम्बर कि दावनगिरी गए थे हमें कैडेट्स मीट के लिए, तो उसमें से 2 से 3 बच्चे शायद जमात के बैकग्राउंड से थे और उसमें कई सारे बच्चे थे जो कि जमात के बैकग्राउंड से नहीं थे। स्टिल उन्होंने जस्ट घर में जाके बोले कि कोई एसआईओ वाले आने के बोले, ना उन्होंने मुझे पर्सनली जानते थे ना मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, बट स्टिल कई घर में आके बोलती कि यासिन भाई साथ में है, रयान भाई साथ में है, रिहान भाई साथ में है, हानी भाई साथ में है, ना उन्होंने मुझे पहचानती ना मैं उनको पहचानता हूँ। जस्ट एक एसआईओ का एक नाम जुड़ जाता है उनसे, तो एक अजीब सा एक भरोसा बन जाता है। ये जो भरोसा है ये है एसआईओ। आप इस उम्मीद से बच्चों को भेजते हो एसआईओ में कि इंशाल्लाह वो उन लोगों में से ना हो जो गुमराह के रास्ते में, वो उन लोगों में से हो जो नेकी के रास्ते में हैं, जो सोसाइटी को इंशाल्लाह दावा के रास्ते में ले जाएंगे, जो अपने दोस्तों को सीधे रास्ते में ले जाएंगे। आप इस उम्मीद से उन्हें भेजते हो। वो जो उम्मीद है वो उम्मीद है एसआईओ। आई स्टिल रिमेम्बर कि मैंने जब एसआईओ की जर्नी स्टार्ट की थी, जमात की जर्नी स्टार्ट की थी, मैं 4 लोगों के सामने आके बात नहीं कर पाता था। मुझे जो पहला प्लेटफॉर्म दिया गया था सीसी में फरहत आपा के थ्रू दिया गया था, ड्रामा के थ्रू। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि मुझे ड्रामा में एक रोल दिया गया था, एक छोटा रोल दिया गया। पता नहीं उस रोल में क्या खासियत थी, एसआईओ में आज तक आ रहा हूँ तो वही रोल मिल जाता है, एक बेजर का रोल दिया जाता है। सो मुझे वहाँ से एक छोटी प्लेटफॉर्म मिली, उधर से शुरुआत हुआ, फिर आईसीसी में आए। आईसीसी में आए बाद उधर भी मुझे एक स्पीकिंग सामने आके बात करने का एक टैलेंट दिया गया। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, मुझे अभी भी भरोसा नहीं है कि मैं इतने लोगों के सामने बात करने के हो। व्हाटएवर आई एम टुडे जस्ट बिकॉज ऑफ एसआईओ। सो एसआईओ एक ऐसी तंजीम है जो आपके बच्चों को सिर्फ दीन के रास्ते में ले जाके उन्हें वो एक्सेल नहीं करेगी इंशाल्लाह। दुनिया में भी आपको जो टैलेंट्स है, हमारे बच्चे के बीच में कई सारे सिंगर्स हैं, कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स होंगे इंशाल्लाह, एकेडमिकल एक्सेलेंस है, इन सब में इंशाल्लाह हेल्प करें। हम कैडेट्स के लिए एसआईओ में एक खास बात ये है कि आप देखेंगे एक कैडेट कहीं का भी हो, इधर से कोई दूसरे स्टेट में जा रहा हो, दूसरे कंट्री में जा रहा हो, या कोई कैडेट इधर आ रहा हो, हम हमारे बीच में ना पुरानी दोस्ती है ना कोई खून का रिश्ता है, लेकिन खुशियों में साथ देना वो मुश्किल के टाइम में हर एक कैडेट एक दूसरे के लिए मौजूद हो। शायद कोई अस्पताल में एडमिट हो, उसके रिश्तेदारों से ज्यादा तो एसआईओ वाले का। तो हमारी जो कैडेट्स की पहचान है, हमारे कहीं पर पहचान नहीं है। हम कहीं भी जाते हैं तो रयान को कोई पहचानता नहीं है, यासिन को कोई पहचानता नहीं है, या इफाक को कोई पहचानता नहीं है, रूहान को कोई पहचानता नहीं है।
जस्ट उसमें कोई बोल देता है कि SIO वाले हैं वो, सो उस चीज से हमारी पहचान है अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज के दौर में SIO की बहुत जरूरत है। मैं आखिरी बात ये कहना चाहूंगा कि SIO एक ऐसी तंजीम है जो आज के दौर में एक मजबूत जरूरत है। इस दौर में जहां स्टूडेंट्स को ड्रग्स, कम्युनलिज्म, ऐसे कई सारे टॉपिक जैसे फरद आपके सामने रखे थे, वैसे कई सारे टॉपिक से भटकाया जा रहा है, मुसलमानों को गलत रास्ते में ले जा रहा है। हमारी सोसाइटी में तो सिर्फ 2 या 3 बात सामने आती है हाईलाइट होकर, लेकिन ऐसे कई सारे बातें हैं जो अंदर दबी हुई है, हमें पता नहीं है, अंदर अंदर से उसको सोसाइटी को खाया जा रहा है, गलत रास्ते में ले जाया जा रहा है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है बच्चों के लिए हिदायत, कुरान और हदीस की हिदायत। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि SIO चाहे वो दीन की राहों पर हो या दुनिया के मसाइल से जुड़ी हो, सब में अपनी पूरी कोशिश करेगा बच्चों की मदद करने में इंशाअल्लाह। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि SIO आने वाले बच्चों के लिए एक मजबूत और सही रास्ता बनेगी, जिससे वो अपने लाइफ में कामयाबी और सोसाइटी में भी सुधार ला सकेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। That was a splendid speech about SIO, right? Okay. Okay, now before you have entered, you might have got a card. You have a card? Yes, right? Can any of one from Jen's side read it out? Any one of them? Okay, please, Sarfraz bhai. Ya Allah, grant our parents high rank in Jannah. Yes. What about one from ladies' side? Every soul shall taste death. Yes. You know who wrote this, but you don't know their names. They are the cadets of ICC sitting in the last. Let's see them. They had 1 week time and they have done such good work just to impress the parents. Some of them were in ICC. Now they graduated. Some people, I don't know who. So, Brother Bilal Manna is going to call out the names who have graduated to SIO. ICCA push करती है. Congratulations for being promoted from Islamic Children's Circle ICC to a grade of Students Islamic Organization of India SIO. Your fantastic and active participation in ICC activities has been truly commendable as you embark on this new phase of your journey. We trust that you will continue to work diligently towards fostering a positive change in our society. May Allah subhanahu wa ta'ala grant you, guide you and shower His first blessings on you. Amin. Many of our cadets are being promoted from Islamic Children's Circle to SIO. I would like to read out the names of our promoted categories. It's time for the graduation ceremony. Muhammad Uman Vyas. Ayan Abdul Razak. Muhammad Ifaq. Muhammad Adnan, Ali Amshan Nawaz, आसिफ अहमद शेख ससादी। अच्छा, अब कितने लोगों को ग्रेजुएशन सेरेमनी पता नहीं है? स्कूल्स में देखे हैं काले कपड़े पहन के, काला टोपी पहन के जाके ग्रेजुएशन होते हैं। यहाँ पे जो हमारे ICC के बच्चे हैं, those who have completed 10th standard और who are in 10th standard recently, दावत के एप्लीकेंट मेंबर्स कैंप हुआ था, वहाँ पे जो ICC से SIO को प्रमोट हुए हैं, उनके लिए एक छोटा सा ग्रेजुएशन सेरेमनी है। इंशाल्लाह they have been promoted। अब ये बच्चे नहीं रहे, बच्चे बड़े हो गए। Yes.
Jazakallah khair, brother. Alhamdulillah, we have come to the half of this program. So there will be refreshments over there. Now it's 11:35. We will again meet inshallah at 11:50. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಮರಳಿ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ತರಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಆಸಿಫ್ ಅಹಮದ್ ಶೇಖ್ ಅವರು ತರಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर एक कॉलेज कैंपस में तेरी पहचान ऐसाइयो धड़कती है जवां सीनों में बनकर जान ऐसाइयो। हर एक कॉलेज कैंपस में तेरी पहचान ऐसाइयो धड़कती है जवां सीनों में बनकर जान ऐसाइयो। चलाता चंद बरसों का प्रशाही का फुला यारो जुनू को पैर हम लेकर के बख्शा हौसला यारो। अज़ाइम है जवाब ने यकीन पुख्ता इरादे हैं जो बातिल कुव्वतों के सब सतूनों को हिला देंगे। गली कूचे हो या मकतब बड़ी हरियान ऐसाइयो धड़कती है जवां सीनों में बनकर जान ऐसाइयो। हर एक कॉलेज कैंपस में तेरी पहचान ऐसाइयो धड़कती है जवां सीनों में बनकर जान ऐसाइयो। चरागे गुजर बनकर हमें बख्शा उजाला है हमारी सोच को अफकार के सांसों में डाला है। अलंबरदार हम इंसाफ के हम दीन के दाई सदाकत का है पैमाना हम हक के है शहदाई। कई दुश्हार राहों को करे आसान ऐसाइयो धड़कती है जवां सीनों में बनकर जान ऐसाइयो। हर एक कॉलेज कैंपस में तेरी पहचान ऐसाइयो धड़कती है जवां सीनों में बनकर जान ऐसाइयो। बदअखलाकी के तूफान से बचाए नौजवां हमने अकम तौहीद का लेकर बढ़ाया कारवां हमने। फहाशी बेहयाई के मुखालिफ हम ही आए थे बदी की तेज आंधी में चरा हमने जगाए थे। बुराई के मुकाबिल लाहनी चट्टान ऐसाइयो धड़कती है जवां सीनों में बनकर जान ऐसाइयो। हर एक कॉलेज कैंपस में तेरी पहचान ऐसाइयो धड़कती है जवां सीनों में बनकर जान ऐसाइयो। कहीं रैली कहीं धरने कहीं पर कारवां निकले बदलना है वतन ये ख्वाब लेकर नौजवान निकले। चलो बेबाक होकर हम मुहाफिज है खुदा अपना अंधेरों के मुकाबिल खुद लड़ेगा हौसला अपना। तला तुम खैज लहरों में भला तूफान ऐसाइयो धड़कती है जवां सीनों में बनकर जान ऐसाइयो। हर कॉलेज कैंपस में तेरी पहचान ऐसाइयो धड़कती है जवां सीनों में बनकर जान ऐसाइयो। जवानाने वतन को अब चलो बेदार करते हैं दिखा कर रास्ता हक का उन्हें तैयार करते
जान ऐसाइयो, धड़कती है जवां सीनों में बनकर जान ऐसाइयो, हर कॉलेज कैंपस में तेरी पहचान ऐसाइयो, धड़कती है जवां सीनों में बनकर जान ऐसाइयो, धड़कती है जवां सीनों में बनकर जान ऐसाइयो. ಜನರಲ್ಲವೇ ನಮಗೆ ಸುಂದರವಾದ ತರಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲಾದ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿರಬಹುದು. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಹುಮಾನಗಳಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕೇಳಬಹುದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹುಮಾನಗಳಿವೆ. ಬ್ರದರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಹಿಲ್ ಅವರು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿಜೇತರನ್ನು ನಮಗೆ ಘೋಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very warm good morning to everyone present here. I am Mohammad Sahil standing before you to announce the name of the winners of the events conducted by ICC. The first event, product marketing, was held on 29 May 2022. The first prize goes to Ilan Nawaz. I request Nisar Ahmed to give the hand over the prize to the winner. Second prize goes to Mohammad Ruhan Riaz. I request Nisar Ahmed to hand over the prize to the winner. The second event, story writing event, was held on 19 June 2022. First prize goes to Ayan Abdul Razak. Second prize goes to Ruhan Riaz. The third event, quiz competition. This is a group event. First prize goes to Arfat Akram, Hani Afshar Nawaz, Mohammad Numan Sheikh. I request brother Sarfaraz Manna to hand over the prize. Arfat Akram and Mohammad Numan Sheikh. Second prize goes to Mohammad Umar, Mohammad Rakib, Mohammad Ilan Nawaz, Ilan Nawaz. I request brother Ashraf Manna to hand over the prize to the winners. The fourth event, group event. Under this, the first event was Musallaj race, cup stacking, card blowing, puzzle solving, dictionary word hunt, paper ball basketing. Was held on 31st July 2022. The first team winner is Mohammad Abad Palukar, Nawaf, Mohammad Rakib, Lukman Ahmed, Mohammad Ilan Nawaz, Mohammad Rehan Yusuf, Mohammad Ridan. I request Rais Ahmed and Rehan's father to give the hand over the prize.
drawing competition on Indian freedom struggle was held on 14th August 2022. The first prize goes to Ryan Yusuf. I request Ryan Riaz to hand over the prize to the winner. Second prize goes to Mohammad Sian. I request Ryan Riaz to hand over the prize. The last event, more poster making competition on the theme Zakat, was held on 9th April 2023. First prize goes to Muhammad Umar. I request Ryan Riaz to hand over the prize to the winner. Second prize goes to Ayan Kanukar. Hello. ಜಜಾಕಲ್ಲಾಹು ಖೈರ್ ಮತ್ತು ವಿಜೇತರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ನಮ್ಮ ICCUDP ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬದರ್ ಯೂಸುಫ್ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. आज मैं आप लोगों के सामने ICC के बारे में कुछ बात कहना चाहूँगा. अल्लाह ताला तौफीक दे. ICC यानी इस्लामिक चिल्ड्रन सर्कल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बच्चों को इस्लामी तालीमात के साथ दुनियावी तालीमात भी सिखाई जाती है. ICC में फन के साथ एजुकेशन दिया जाता है. ICC में डिसिप्लिन, मैनर्स और एटिक्यूट और अच्छे कैरेक्टर को बच्चों के अंदर डाला जाता है, उनको सिखाया जाता है. ICC में सबको अपने टैलेंट और क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए मौका मिलता है. ICC में एवरी वीक एक ICC कैडर को एक टॉपिक मिलता है जिसमें उनको काम कर अगले वीक आकर परफॉर्म करना पड़ता है, जिससे उनका स्टेज फियर चली जाती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है. ICC में बहुत सारे कंपटीशन चलते हैं जैसे कि स्पोर्ट्स कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, कैलीग्राफी कंपटीशन एक्सेट्रा. इसे एक लार्ज स्केल में ऑर्गेनाइज किया जाता है जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, यूनिट लेवल और स्टेट लेवल. एक बिल्डिंग को अच्छा बनाने के लिए क्या चाहिए? एक फाउंडेशन. ऐसे ही ICC फ्यूचर नाम के हमारे बिल्डिंग को अच्छा बनाने के लिए इस्लाम तालीमात के साथ दुनिया की तालीमात भी हमारे फाउंडेशन में डाल रहा है, जिससे हमारे फाउंडेशन एक बहुत अच्छी फाउंडेशन बनकर एक बिल्डिंग भी बन जाती है. हमारा ICC में बहुत सारे टैलेंटेड कैडर्स हैं, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है तो कोई खाने बनाने में, कोई क्रिएटिव मॉडल्स बनाने अच्छा है तो कोई स्पीच में अच्छा है. ICC उनको अपने टैलेंट को डेवलप करने की मदद करता है. ICC में 10th के अंदर के बच्चे आ सकते हैं, जो 10th पास करते हो उनके लिए अच्छा ही होता है. मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ICC को जितना हो सकते हैं उतना सपोर्ट दीजिए. ಜಜಾಕಲ್ಲಾಹು. ICCUDP ಘಟಕದ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರದರ್ ರೆಹನಾ ಯೂಸುಫ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈಗ ICCUDP ಘಟಕದ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಯಾಸಿನ್ ಮಾನ ಅವರು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. एक सवाल जो हमें बार बार पूछा जाता है बच्चों से, पेरेंट्स से, लेक्चर करते हैं तो स्टूडेंट्स से, हमेशा बार बार एक सवाल जो रिपीटेडली हमें सुनने में आता है, यासिन भाई किस चीज में आगे स्कोप है? मैं क्या करूंगा तो मुझे आगे जाकर अच्छा स्कोप है? तो इसका जवाब अलग अलग जिंदगी के मरहले में अलग अलग जवाब दिए हैं. रिसेंटली एक किताब पढ़ रहा था, उसमें मुझे बहुत ही अच्छा जवाब मिला. आज के इस माहौल में अच्छे नौजवानों के लिए बहुत ही ज्यादा स्कोप है.
जो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छे नौजवान हैं, जितना स्कोप उनके लिए है इस दुनिया में उतना स्कोप किसी के लिए भी नहीं। तो सबसे पहले अच्छा वन राउंड ऑफ अप्लॉज दीजिए। ये जो इवेंट है आईसीसी के बारे में आप सुनते आए हैं। हम लोग जो बच्चे थे तब बच्चों से लेकर आज तक हम आईसीसी में ट्रेन होकर आए हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो आगे की जो जनरेशन है, ये जो बच्चे हैं घूम फिर गए हैं, इन्हें ट्रेन करने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। नंबर 3, ये जो इवेंट आप देख रहे हैं फ्रॉम A to Z, each and everything was organized by your kids। इसमें यासिन मन्ना ने कुछ नहीं किया या ऐसा ही होगा किसी ने भी कुछ नहीं किया। फ्रॉम A to Z everything was done by them। इवेंट प्लान उन्होंने किया, ये पोस्टर्स उन्होंने बनाए। अगर आप ये सब देख रहे हैं, we did all this। सारे पेरेंट्स को कॉल किए गए, इनवाइट किया गया, फूड का इंतजाम किया गया। कल रात को अगर माइक्रो सिस्टम का अगर इंतजाम है वो बच्चों ने किया था, चेयर्स बच्चों ने लगाए हैं। फ्रॉम A to Z ऑफ दिस स्पीच सब कुछ बच्चों ने किया था। आई केम एट 9:30 टुडे। मैं 9:30 बजे आया था। हमारे बच्चे सुबह 7:30 बजे आकर इस इवेंट को स्टार्ट किए। They have started this event somewhere at 7:30 in the morning। What is? तो आप लोगों ने देखा होगा दिस इवेंट was quite सज्जी के बच्चे, जिसे हमें सज्जी के बच्चे बोलते हैं। It was a little messed up। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स have done very well। फिर भी थोड़े बहुत उधर बच्चे आ गए जा गए। एक चीज हम अपने बच्चों को नहीं करने देते, एक चीज हम अपने बच्चों को करने से रोकते हैं और SIO में हम बच्चों को वो चीज करने के लिए प्रमोट करते हैं। गलतियां, हम अपने बच्चों को गलतियां करने नहीं देते। जब भी वो कुछ गलतियां करते हैं तो हम उन्हें रोकते हैं, जब भी वो कुछ गलत काम करते हैं तो हम उन्हें टोकते हैं। बट हियर इन SIO we promote our kids, we encourage our kids to do some mistakes, क्योंकि जब तक वो गलतियां नहीं करेंगे कुछ भी नहीं सीखेंगे। So this event was a lot of mistakes। This event was a lot of mistakes। अगर आज हम उन्हें यहाँ गलतियां नहीं करने देंगे, अगर आज हम सिर्फ अच्छा स्पीच करने वालों को यहाँ पे रोकेंगे, सिर्फ अच्छा बात करने वालों को यहाँ पे लाएंगे, गलतियां करने वालों को अगर हम सामने ना लाएंगे तो 10 साल बाद वो गलतियां करने वाले कहीं ना कहीं जिंदगी में पीछे रह जाएंगे। So in SIO all we allow our kids to do is mistakes। हम उन्हें सिर्फ और सिर्फ गलतियां करने के लिए यहाँ पे बुलाते हैं। जब हम गलतियां कहते हैं, गलतियां इन लाइफ स्किल्स, ना हम यहाँ पे शराब देते हैं, ना गांजा देते हैं, ना सिगरेट्स देते हैं, नथिंग लाइक दैट। जिंदगी में जब तक इंसान गलतियां नहीं करता तो कुछ सीखता नहीं है। तो इन ICC we allow them to do mistakes। एंड नंबर 3, क्या ICC में आकर 100% आपके बच्चे एक्सेलेंट होंगे? What do you think? क्या ICC में आकर आपके बच्चे 100% एक्सेलेंट लोग बनेंगे? No, I don't assure you that। 100% even LifeBuoy gives you 99.99% of infections, उतना ही मार सकता है। हम 100% एश्योरेंस नहीं देते कि आपके बच्चे यहाँ आएंगे तो एक्सेलेंट हो जाएंगे। But what I say is here is a platform, क्योंकि this example I always give। नूह अलैहिस्सलाम was such a big prophet, लेकिन उनका बेटा भी जो है उनके साथ लास्ट में कश्ती में नहीं चढ़ा था। So we don't give you 100% assurance, लेकिन हमारी कोशिश जो है वो 100% रहती है। हमारी 100% कोशिश होती है कि ये सारे जो बच्चे हैं उन्हें ट्रेन किया जाए, उन्हें सही रास्ते पे चलाया जाए। So the topic is what next in SIO, what the way forward। ये SIO मैं नहीं चला रहा हूँ, I am not doing it। ये सारे जो आपको लोग दिख रहे हैं, निसार भाई हैं, सरफराज भाई हैं, रईस अहमद हैं, या ऐसे कई लोग हैं जो इंतकाल होकर चले गए हैं। They all started ICC from a long time ago। कुछ 50 साल पहले जो है, 50 नहीं समय 30-25 years ago ICC चलता आया है। जब हम पैदा नहीं हुए थे तब से ICC चलता आ रहा है। And ICC is a cycle। आज हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, जब हम चले जाएंगे इन बच्चों के ऊपर जिम्मेदारियां होंगी कि ICC को चलाएं। So is SIO run, ICC run by Yasin Manna? No, ICC is run by those cadres who have been trained in ICC, and now it is their responsibility to take this forward। तो आखिरी बात इसी के साथ मैं खत्म करना चाहता हूँ कि
सूबे कहफ की खूबसूरत सी आयत है, वो कुछ नौजवान थे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को भरोसा ले आए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें सीधे रास्ते पर चलाया। तो हमारी बस ये कोशिश है कि वो कुछ नौजवान इस सोसाइटी में, आज के माहौल में आपके बच्चे हों, हमारे आईसीसी के कैडर्स हों। तो इंशाल्लाह वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन फ्यूचर। और हमारे जो आईसीसी क्लासेस है वो थियोरेटिकल नहीं होते, कभी कभी एक लेक्चर होता है, उसके अलावा वी फील्स हम बच्चों को लर्न बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट से सिखाते हैं, उन्हें कुछ चीजें दे देते हैं और वो उन सारी चीजों से सीखते हैं। सो इन फ्यूचर वी हैव गॉट प्लान्स, हम अपने बच्चों को जो है एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस रिलेटेड फील्ड्स में ले जाने वाले हैं, कब्रिस्तान ले जाने वाले हैं, मैयत को कैसे नहलाना है ये सिखाने वाले हैं। जो बेसिक चीज है, जो बेसिक एटिक्वेट्स है, जो हम उन्हें घर में नहीं सिखा सकते और जो ना उन्हें स्कूल सिखा सकता है, वो गैप को हम ब्रिज करने की कोशिश आईसीसी के जरिए से कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपसे दरख्वास्त है, जो भी आप अपने बच्चों को आईसीसी में भेज गए हैं, बी कंसिस्टेंट, आईसीसी में अपने बच्चों को भेजते रहिए और अपने आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें कन्वे कीजिए कि वो भी अपने बच्चों को आईसीसी में भेजें। आईसीसी सिर्फ यहाँ पे नहीं चलता, आईसीसी हुरे में चलता है, मलपे में चलता है, आदि उड़पी में चलता है, उड़पी में चलता है, कुकी कट्टे में चलता है। कितने मकामात में आईसीसी चल रहा है, इस्लामिक चिल्ड्रन सर्कल। हो सकता है तो उड़पी में भेजने की कोशिश करें, हो सकता है तो उड़पी में भेजने की कोशिश करें, क्योंकि अलग मकामात में भी कोशिश चल रहे हैं। हर जगह पे 100% नहीं चलता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गॉट अ वेरी गुड सेटअप इन उड़पी। सो सेंड देम टू उड़पी, कोशिश करें। जज़ाकल्लाह खैर, आप लोग अपना वक्त निकाल के यहाँ पे आए हैं। सब लोग कह रहे थे सुबह में तुम्हें प्रोग्राम रखती, हमें प्रोग्राम में आना है, घर जाकर खाना कौन पकाएगा, वाज द क्वेश्चन। तो इतनी सैक्रिफाइसेस के बाद भी आप लोग अपना वक्त निकाल के लेडीज आए हैं, जेंटलमैन आए हैं, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थोड़े मिस्टेक्स हुए हैं, लेकिन हार्ड वर्क की तरफ से दिस वाज 100% सक्सेसफुल इवेंट। सो वन राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल आवर आईसीसी कैडेट्स। आगे जाकर आईसीसी एक्टिविटीज चलते रहेंगे, साथ ही साथ हम पेरेंट्स के लिए इवेंट्स करने वाले हैं। इंशाल्लाह 1 से 3 मंथ्स हम मिलेंगे और पेरेंट्स के लिए पेरेंटिंग स्किल्स के ऊपर जैसा हो सकता है उतनी वर्कशॉप करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी कोशिशों का हौसला अफजाई करते रहिए, क्योंकि वो नौजवान कल के मुस्तकबिल के सितारे आपके घर से आ सकते हैं और यहाँ पे ट्रेन हो सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ಜಜಾಕಲ್ಲಾಹು ಖೈರ್. ಯಾಸಿನ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆದ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಈ ಸೋದರ ಹಾನಿ ಅಂಶ ನವಾಜ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. आईसीसी कैडेट। तो आज का इस इवेंट शुरू करते हुए हमें फर्स्ट इस इवेंट शुरू करने से पहले उसके जो रूल्स हैं ना, वो फर्स्ट हम एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चंस हमें पीपीटी के थ्रू दिखाते हैं, जो आपको अभी दिखेगा स्क्रीन में, और आपको ओरल क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। और क्वेश्चन जब पूछती ना, क्वेश्चन देके डायरेक्ट आंसर करने नहीं, पहला हैंड रेज करना, जो फर्स्ट हैंड रेज करती है उनको आपको क्वेश्चन पूछना हमें देखना। और जो अगर क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो हमें पास करते हैं आईसीसी कैडेट्स को। अगर डायरेक्ट आंसर से आईसीसी कैडेट्स का कंसीडर किया, पास खाली आंसर करने से आईसीसी वाला है। आज का इवेंट शुरू करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो अभी आप कैरेक्टर डिक्लेयर है, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। यस, करेक्ट आंसर। आप सबको पता है कौन है? इनके बारे में पता है सब लोगों को? ओके, फादर ऑफ नेशन। देखो, और नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका नाम क्या? फुल नेम। ट्राई करो। ओके, अडॉप्ट इंटरप्रेट करो, बोले आंसर। कौन है? कौन है नाम? यस, करेक्ट आंसर। सैयद अबुल कलाम मौदूदी was the first founder of जमात इस्लामी। जमात इस्लामी अभी कितना बड़ा सारा कंट्री कवर करता है, उतना बड़ा ऑपरेशन है, बट फर्स्ट कौन जो इसे स्टार्ट करे उनका नाम सैयद अबुल कलाम मौदूदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाया
क्या बोले? कौन है? Okay, Tesla record and one of the wealthiest. Next question. शिखर कैसे है? ओके बराबर. शिखर इंडियन क्रिकेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Luigi. क्या बोले? चार्ली चैपलिन. ओके इनके बारे में कुछ बता सकते हैं? कॉमेडियन है. यस कॉमेडियन एक्टर. या ओके एक मिनट उनको प्राइज देंगे आंसर होगा लेकिन चार्ली चैपलिन उनका असली नाम नहीं है. चार्ली चैपलिन इज स्टेज नेम. जैसा मिस्टर बीन है, मिस्टर बीन उसका असली नाम नहीं है, उसका नाम रोवन एटकिंसन है. और जवाब दिए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके अभी नेक्स्ट राउंड होने वाला है. एक सूरा को इमेज. अब तुम्हारे सामने एक सूरा दिखाया जाएगा. वो सूरा या फिर कुछ सूरा रिलेटेड इमेज वो आप आइडेंटिफाई करके आंसर करना है. मैं गेस करता हूं. पकड़ क्वेश्चन. सूरज. यस करेक्ट आंसर. यहाँ कश्ती और एक पानी को दिखाया जा रहा है. इससे हमें सूरज मून का सारा इमेजिन कर सकते हैं. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. सूर्य नहल. यस सूर्य नहल नहीं. सूर्य नमल. ओके ओके. नमल का मीनिंग क्या है? यस चुटकी के बारे में सारा सूरज है हमारे कुरान में. तो ऐसे हमारे आईसीसी में भी इवेंट हुआ था. इसके थ्रू हमने बहुत नॉलेज मिला सूरज के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन. सूरज नहल. नहल का मीनिंग दबी. यस करेक्ट. ये चैप्टर नंबर एक बी के बारे में सारा बहुत अच्छा सूरा है. आप में से कोशिश करो कि करने जाओ पर ये सारा सूरा भी ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए बहुत अच्छा सूरा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सूरा बकरा. एक्चुअली बकरा का मीनिंग का काउ है बट हम गाय का इंग्लिश मिला है इसलिए बकरा का. नेक्स्ट क्वेश्चन. सूर्य यूनुस. यस सूर्य यूनुस. इनका एक छोटा समराइज कर सकते स्टोरी. क्योंकि ये एक वाहिद नबी है जिनको अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं हुआ था कि अपनी गाँव को छोड़ के जाने का. लेकिन वो उनके फॉलोअर्स वहाँ पर उनके गाँव के लोग इनकी बात को नहीं माने तो वो बेजार होकर वहाँ से निकल गए. तो अल्लाह ताला ने उनको एज ए पनिशमेंट मछली के पेट से उनको करेक्ट आंसर बट एक ही चॉकलेट मिलेगा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी अनकबूत. यस अनकबूत का मीनिंग क्या है? यस स्पाइडर. अगर तुम कुरान में देखे तो है ना कुरान में छोटे छोटे इंसेक्ट्स के बारे में भी कुरान में एक्सप्लेन होता है. और ये इंसेक्ट्स है ना नॉर्मल इंसेक्ट्स में इनके बारे में अगर तुम साइंटिफिक रिसर्च करे तो भी कुरान से कोई मैच होता है. सूर्य की ये सूर्य का मीनिंग पाते हैं.
Okay, correct answer. Speak on. Yes, correct answer. Next question. Yes, सूर्य कहाँ का मीनिंग क्या? क्या आप बोल सकती हैं ये सूर्य में कितना स्टोरीज है? Yes. Yes, इनका ये जो सूर्य है ना, इसमें स्टोरी है, 4 स्टोरीज है। ये स्टोरीज है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट आते हैं, उसके बाद सोचने में इंटरेस्ट आते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो सूर्य कहावत है ना, जुम्मा पढ़ने सब लोग ट्राई करो, क्योंकि इसका बहुत अच्छा सवाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्या होता है आपके सामने एक लोगो दिया गया, वो लोगो को है ना, वो लोगो का नाम तुम्हें गेस करना। कौन हाथ होता है पहला देखो। ओके, आंसर करने के नीचे सी यस करेक्ट आंसर। ओके, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसे आप हो, इसमें क्या करना है? आपकी मोबाइल में देख रहे हैं बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईसीसी वाले उठाने नहीं, आईसीसी वाले ले कर ले। ओके, वो ब्राउन वाला नहीं है, मैं देखो ये कैसा कंपनी है? फर्स्ट कंपनी है, बहुत कंपनी है, वन ऑफ द फाइनेंस ब्रांड। ओके, और जो आंसर अब तक दिए ना, नहीं करेंगे दूसरा प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, उनको देता हूँ चांस। मिला नहीं? ओके, कैसे कंपनी? यस, कॉफी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। ओके, ये इंश्योरेंस क्या है? चैनल किसमें? यूट्यूबर के। ओके, वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर्स। जो यूट्यूब देखते हैं वो मालूम है। यस, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तक। ये क्या है? ये बच्चे लोग बहुत पसंद करते हैं गेम। ओके, जो बच्चे लोग हैं ना, मेरा चिकन से मतलब बच्चों को नहीं, पेरेंट्स से हैंड रेस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, करेक्ट। ओके, अभी और एक रूल्स हम ऐड करके बीच में, जो ऑलरेडी आंसर करना आंसर करें। ओके, नेक्स्ट रिपीट है तुम्हारा खाने का। ओके, ओके, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये ऐसा राउंड यहाँ पर सेकंड राउंड खत्म होता है। अब थर्ड राउंड, नेम द फेमस मॉन्यूमेंट एंड प्लेस वेयर इट्स लोकेटेड। ये फोर्थ राउंड, सॉरी। इसमें क्या बोले तो आपके सामने एक मॉन्यूमेंट दिखाया जाएगा, वो मॉन्यूमेंट का नाम और वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं।
या फिर मॉन्यूमेंट हो सकते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस हो सकते हैं, कंट्री और एक मॉन्यूमेंट का नाम। ओके, आंसर देने की खाली हाथ उठाए, जो ऑलरेडी आंसर देते हो ना हाथ उठाने में रखो। ओके ना? यस, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हाथ उठाए। pyramid of Giza was famous. Actually, it is a forever pyramid, but it's a full name pyramid of Giza was. Yes, correct answer. Yes. Next question. Yes, ये कैसे आईपीएल का ये कौन सा कंट्री में है? ये एक्चुअली कैसा फ्रांस में है, फ्रांस कंट्री, इसका फेमस एक सिटी है, इसका नाम है पेरिस। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी माइक Statue of Liberty, yes, correct answer. और जो अभी बोला है ना, मतलब repeated हाथ उठाना हो, उसके बाद लोग जानते हैं। चलो, next. Repeated. Yes, Statue of Liberty. कौन सा काम बुलाता है किसी को? हमारा हिंदुस्तान में से करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टैच्यू ऑफ इंडिया हिंदुस्तान है किस में? यस। Yes, what's the country belong to? Okay, next question. इससे भी आंसर मार सकते हैं एक अरे आदमी लीडिंग टावर और पिज्जा नहीं वो सब इडली यस इडली जो है चलो डेली खाती डेली नहीं कभी कभी खाती कोई बहुत सारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बाबर मस्जिद यस ये मस्जिद के बारे में कुछ बोल सकते हैं आप डेमोस किया था बराबर वन ऑफ द अप्रोप्रिएट मस्जिद था बराबर नेक्स्ट अभी तो मतलब दूसरे को शादी करने के बाद अरे बिलोंग करते हो आई थिंक कंट्री नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट ओके अभी एक लास्ट बोनस क्वेश्चन है मतलब ये नेक्स्ट
काउंट है बट ये जो मॉन्यूमेंट्स का है लास्ट बोनस क्वेश्चन है अगर ये इसका आंसर तो जानते नहीं हमको क्या बोला था यस मैं क्वेश्चन जल्दी बोलो एक इंडिया में गैस करेक्ट आंसर हम लोग गैस पीछे बैठे हुए बराबर ओके नेक्स्ट अभी ओके नेक्स्ट आप क्या बोले तो तुम्हें सब लोग अभी अपने बच्चों को कार्टून सब देखने देखेंगे सब लोगों को कार्टून मालूम है मैं कार्टून चाहती हूँ बच्चों को देखते ये राउंड क्या बोले तो तुम्हें जो तुम्हारे बच्चों का फेवरेट कैरेक्टर्स है ना कार्टून्स में उनका नाम बोले और यस भाई 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 क्या बोले सब लोगों को मालूम है बट पेरेंट्स कितना बच्चों को देखते हो मालूम पड़ना बोले शिनचैन ओके इनका एक कैरेक्टर का फुल नाम बोल सकते हैं आप अगर कार्टून देखे मूवी का सर क्या बोले ओके इनका नाम शिनोसुके नोहारा है जापानीज कैरेक्टर मतलब जापानीज और सेंटर और इतना समझ मालूम नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा से बच्चा से और ग्रुप आंसर्स भी अलाउड नहीं है ओके लास्ट क्वेश्चन जी एक महिला कौन कार्टून से बिलोंग करती ओके और अभी और एक नया रूल आया ग्रुप आंसर्स दे तो क्वेश्चन स्किप होते हैं ग्रुप आंसर्स देने से पैकेज पे लगाना नेक्स्ट क्वेश्चन तुमने साथ मिलाएंगे नोबिता ये कौन सा कार्टून से बिलोंग करती है वही देखता अच्छा यस करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नाइस क्या है ना क्या बोलो कौन सा कार्टून से बिलोंग करती है एनिमल कौन सा एनिमल से बिलोंग करती है करेक्ट आंसर ओके ये भी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चे हाथ मिलाने नहीं लोग मालूम है बट मेरे कितना बच्चों का कार्टून का नाम सब मालूम यस करेक्ट Next question. Silence रखो और ओके okay no बोले
क्वेश्चन है, बोनस क्वेश्चन, जिसे मालूम है। पीछे करो, पीछे करो, पीछे। ये कैरेक्टर का एक फेमस डायलॉग है, किसका मालूम है? उनको एक यस जरा चेंजेस है। लास्ट वर्ड रॉन्ग था, लास्ट वर्ड रॉन्ग था। Impossible. Yes, correct answer. Impossible, not impossible. Okay. अभी एक लास्ट राउंड है, लीडर से 4 क्वेश्चन पूछना है। भाई कैसे पूछ रहे हैं? ओके। Yes, correct answer. Next question. Next question. What is in front of you but can't be seen? यहाँ तो हमारा खत्म होता है, बट एक बोनस क्वेश्चन। जमात इस्लाम से रिलेटेड कोई 5 या 6 ऑर्गेनाइजेशन जो लिंक हो गए, प्लानिस्ट हो गए, 6 ऑर्गेनाइजेशन का नाम बोलना। जमात इस्लाम SIO, yes, Solidarity, yes, Board of Islamic Education, yes, HRS, yes, इदारे अदब इस्लामी, yes, और एक शांति प्रकाशन, yes, सन्मार्का, अनुपमा, yes, 10 बोले। लेकिन एक्स्ट्रा चॉकलेट मिलता नहीं, किस मिलेगा? मुझे ना बात खाने। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ हमारा क्विज का इवेंट खत्म होता है। आज मुझे मालूम हुआ बच्चा को संभालना कितना मुश्किल बोलते हैं यार यार। तुम्हारे बच्चा को संभालेगा तुमका बच्चा संभालना मुश्किल। अच्छा, वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। इंशाल्लाह आखिरी 10 मिनट हम लोग लेंगे। 10 मिनट के बाद वी विल कंक्लूड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। इंशाल्लाह बेटा आयाम कंटिन्यू करेंगे। ಈಗ ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕುರಿತು 10 ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ಸೆಷನ್ ನಡೆಸೋಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ. आप सभी का हम फीडबैक एक्सपेक्ट करते हैं। सो वी एक्सपेक्ट पेरेंट्स टू कम फॉरवर्ड एंड गिव योर फीडबैक। आप लोगों का जो फीडबैक है प्रोग्राम के रिलेटेड नहीं, आईसीसी के रिलेटेड हो सकता है या इसके रिलेटेड आगे आकर कन्वे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो मैं नया थी आज फिर भी आना पड़ा, लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद में मालूम पड़े कि हमारा ब्राइट फ्यूचर है बोल के एक बच्चे छोटे छोटे बच्चे हमें नमाज के लिए आने में उधर उधर सताते थे, नमाज पढ़ने आगे पीछे आते थे, बहुत सताते थे। 2 बच्चे आज इतना अच्छा प्रोग्राम दे मुझे माशाल्लाह बहुत खुश रहते। मैं सब लोगों को बोलती हूँ, सब तुम्हें तुम्हारा नेबर से बहुत लोगों को जल्द मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, सच ग्रेट प्लेटफॉर्म। जो कुछ हम लोग अभी बच्चों से करा नहीं पाते, यासीन भैया बोले तो काम हो जाता आजकल। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे ग्रेट प्लेटफॉर्म। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है एचसीसी के बच्चों के द्वारा। जो बच्चे प्रमोट हुए हैं एचसीसी को SIO, उनके लिए एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा। ये जो एक यूनिट से, एक ऑर्गेनाइजेशन से या एक विंग से दूसरे विंग को चेंज होना ये कुछ बड़ी बात नहीं, क्योंकि जमात इस्लामी जो है एक ब्रीड की तरह है।
जो अपनी मंजिल की तरफ मुकम्मल बढ़ रही है, कंटिन्यूसली रन कर रही है। उसमें अलग अलग बोगियां हैं। आईसीसी एक बोगी है, एसआईओ एक बोगी है, और टॉयलेट एक बोगी, अलग अलग बोगी। आप लोगों ने एसआईओ की बोगी, आईसीसी की बोगी से बस बोगी चेंज किया है। अपना मंजिल को, अपना जो जर्नी करने का ट्रेन है उसको कभी मत चेंज करो। इंशाल्लाह अपना मंजिल को, अपने एम को हम इंशाल्लाह साथ में मिलकर पहुंचेंगे और जन्नत में साथ लोग साथ होंगे। आज का प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। इस छोटे गले में आपने जो बच्चे टैलेंट दिखाए आपका बुला रहे, इसके पीछे तो माशाल्लाह एसआईओ के स्टूडेंट का तो बहुत सपोर्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों के तो एसआईओ और आईसीसी के बच्चों के वो मेरा हमेशा तो यासीन भाई बोलते हैं माशाल्लाह खराब क्या होगी और आगे भी इंशाल्लाह जो आपके एसआईओ से आईसीसी वर्कआउट होकर एसआईओ गए, उनको भी आपकी जरूरत है, आपकी बैक सपोर्ट की जरूरत है। इंशाल्लाह उनके अंदर ऐसा तकवा डालो, नमाज और उसके बाद जो है अल्लाह का तकवा उनके अंदर डालो। ये आपकी जिम्मेदारी है, वो उनकी मंजिल तक पहुंचाना। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ उस मंजिल तक इस बच्चे पहुंचेंगे जरूर इंशाल्लाह। और जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी दुआ में याद करते हैं और सभी दुआ में याद करते हैं, तो बच्चों को उसकी मंजिल जरूर पहुंचती है। अल्लाह से हमेशा दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सुन्नी सुनाने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जहाँ भी जाए अल्हम्दुलिल्लाह एसआईओ की चर्चे आप एसआईओ के नारे करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुनने में बहुत खुशी होती है। और जो एसआईओ के स्टूडेंट है उनका जो हेल्पिंग नेचर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी काबिलियत, उनकी हिम्मत, उनकी जज्बा के लिए अल्लाह ताला उनको हमेशा हमारे लिए बरकरार रखे और हम उनके लिए दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। ಈ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಈ ನಾನು ಬ್ರದರ್ ಅರಫತ್ ಅಕ್ರಮ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಸಲು ಅವರನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. Dear parents, distinguished guests and fellow participants, I stand here today to express my heartfelt gratitude to each and everyone for making this event a resounding success. Your presence, support and contribution has truly made a significant difference. We extend our deepest appreciation to Yasin Manda and organizers who tirelessly work behind the scenes to ensure everything went successful. This event would not have been possible without the unwavering commitments and hard work. Lastly, but certainly not the least, we owe a huge thank you to all our attendees for taking active participation, enthusiasm, and for making this gathering so vibrant and memorable. Thank you all again and carry forward this lesson and connections we have gained here to continue making a positive impact in our communities. Thanks.